देखो, what is given in the question? What is given in the question? How will you deal with the following items while preparing income and expenditure account for the year ended 31st March 12? मतलब हमारा year है 11-12 and the balance sheet as on that date, right? In each of the alternative cases, each case is different. At the beginning of the year, at the end of the year. Creditors for sports material. Opening creditors मतलब उतना पे करना था and end में 1300 पे करना बाकी है. Stock of source material, opening stock and closing stock. Opening stock, closing stock है, हमें purchases चाहिए. Consumption is opening stock plus purchases minus closing stock. हमें purchases ढूंढना है, purchases. During 11-12, the payment made to these creditors were 10,800. Payment made to these creditors are 10,800. You have opening creditors of 2,000. You have closing creditors of 1,300. You have made payment of 10,800. There was no cash purchases. ध्यान देना. Two good question. So, what they are given? Finding out consumption. Finding out consumption. Finding out consumption. How to find out consumption? Opening stock plus purchases. There are two types of purchases. Credit purchases, purchases on credit, and cash purchases. Purchased on cash basis. ऐसे दो परचेस हो सकते हैं, यस सर, जिसको हम ओवरऑल परचेस बोलते हैं. बट अगर परचेसेस को स्प्लिट किया जाए तो कैश परचेस एंड क्रेडिट परचेस से दो कंपोनेंट्स मिलेंगे आपको. लेस क्लोजिंग स्टॉक, therefore consumption. बराबर. You have opening stock. You have opening stock which is 3,000. You have closing stock which is 500. Opening stock 3,000. Closing stock 500. ठीक है. आगे you don't have purchases. You don't have purchases. They have said there are no cash purchases. There are no cash purchases. How to find out purchases on credit? When you purchase the goods on credit, it impacts your creditors account. The entry is purchases account debit to creditors account credit. It is purchases account debit to creditors account credit. Creditors accounts gives you goods purchased on credit. Creditors account gives you goods purchased on credit. So I will prepare creditors account. T form में बहुत simple है. Creditors account. Creditors is a liability. Creditors is a liability. So credit is increase in liability. Debit is decrease in liability. When you purchase goods on credit, liability towards creditors increases. क्या बोला मैंने, ध्यान देना wording. When you purchase goods on credit,
liability towards creditors increases, and when you make the payment to the creditors, liability towards them decreases. So if you purchase the goods, creditors को credit होगा because into the purchase to creditors, purchase debit होता है, creditors credit होता है. And when you make the payment to the creditors decrease होंगे, debit होगा into the creditors account debit to बैंक को credit होगा and creditors को debit होगा. अब देखते हैं क्या लिखा है उन्होंने. First, opening creditors were 2000, closing creditors are 1300. These creditors are sports material. These are creditors for sports material. Opening कितने? Opening creditors are 2000 and closing are 1300. By opening creditors. Creditors of credit balance. Opening credit में आ गया. Closing balance should come to the credit. Next year के credit में आना चाहिए, बराबर ना? तो अभी यह कहाँ पे बैलेंस करना होगा? डेबिट पे. To closing credits. Opening creditors, they have credit balance. So credit साइड पे आएगा. Closing credit balance डेबिट पे आएगा बैलेंस करने के लिए. Credit is more than debit, इसलिए वो डेबिट पे आया है. नेक्स्ट टाइम वो क्रेडिट पे आ जाएगा. ठीक है. देन आगे उन्होंने बोला है you have made the payment of rupees 10,800 to creditors. So you have paid 10,800. एंट्री आती है creditors account debit to cash 10,800. You have to tally the account. यहां पे रहेगा बाय क्रेडिट परचेसेस या परचेसेस. It is 12,100. 12,100 minus 2,000, it is 10,100. मतलब पहले ही आपको उनको 2,000 पे करने थे. पहले ही हमें उनको 2,000 पे करने थे. फिर हमने इस साल में 10,100 के गुड्स और परचेस किए क्रेडिट पे. तो अब टोटल कितना पे करना है हमें उनको? 12,100. टोटल कितना पे करना है? 12,100. इसमें से हमने उनको कितना पेड किया? 10,800. हमने कितना पेड किया? 10,800 पेड किया. तो अभी भी कितना बाकी है? 1,300. इतना बाकी है. ये कब पेड होगा? नेक्स्ट ईयर में पेड होगा. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं. सो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि योर परचेसेस, जो आपके परचेसेस है ना, वो क्रेडिटर्स अकाउंट देगा. हमें पहले उनको 2,000 पे करने हैं. हमने और उनके 10,100 के गुड्स परचेस किए. टोटल पे करना है 12,100. उसमें से हमने साल भर में 10,800 पे किया. तो बैलेंस कितना है? 1,300. होगा टैली. आगे सो योर परचेसेस आर 10,100. तो ये यहां पे आएगा. यू परचेस गुड्स ऑफ 10,100. आपने पेमेंट 10,800 का किया है, बट परचेस इज नॉट 10,800. परचेस इज 10,100. सो इट इज, हमारे पास 3,000 के पहले गुड्स थे. इस साल में हमने 10,800 के उनसे परचेस किए स्पोर्ट्स मटेरियल. सो टोटल हो गए 13,100. उसमें से 500 अभी भी स्टॉक में. तो कितने कंज्यूम हो गए? 12,600. चेक करो कितने लोगों का करेक्ट है आंसर. चेक करो कितने लोगों ने करेक्ट किया. ओके गुड, करेक्ट किया है जॉनी. और है क्या किसी ने क्या लिया यहाँ पे? मुझे लगता है ना 10,100 की जगह तुम लोगों ने ना 10,800 लिया होगा. इसे कितने लोग हैं जिन्होंने 10,800 ले लिया? हो सकती है गलती, उसमें क्या नहीं. क्या बोल रहा हूं ध्यान देना. 3,000 बराबर लिया होगा सबने. 500 भी बराबर लिया होगा. इंस्टेड ऑफ 10,100 यू मस्ट हैव टेकन 10,800. ऐसी गलती बहुत लोगों ने की होगी. ऐसी गलती की होगी आप लोगों ने. दिस इज वेरी कॉमन एरर कि वी टेक 10,800 इंस्टेड ऑफ 10,100. है क्या कोई और जिसने ऐसी गलती? उसमें क्या है?
इसने यहाँ पे 10,100 की जगह 10,800 ले लिया, रेज द हैंड, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें क्या है, गलती से तो सीखते हो, यू विल नेवर फॉरगेट सच एरर्स देन। ये कौन है रे 471181 वाला, ये कौन है, चेंज द नेम, 471181, कुछ भी नाम मत रखो हाँ? किसका है रे 4781, यू कैन गो एंड चेंज द नेम। आगे नेक्स्ट, बाय मिस्टेक क्लोजिंग स्टॉक मेरे से ऐड हुआ, बाकी सब करेक्ट है, क्लोजिंग स्टॉक शुड बी डिडक्टेड, closing stock should be deducted. So your consumption is 12,600. There is a difference between purchase and the payment. Payment to the creditors is different and purchase from creditors is different. Payment to creditors is 10,800. Purchases from creditors is 10,100. So ये छोटी छोटी चीजें जो हमें मे बी 11th में हम इतना गौर से नहीं देखते उनको, बहुत सिंपल चीज है, but it helps you to understand accounts in very clear manner. So payment is different, purchase is different and consumption is different. आपने इस साल में क्रिएटर्स को 10,800 का पेमेंट किया है, बट एक्चुअली परचेस 10,100 है, एंड उसमें से एक्सपेंडिचर 10,800, परचेस इज नॉट एक्सपेंडिचर, उसमें से जो कंज्यूम्ड है वो एक्सपेंडिचर है, 12,600 इज एक्सपेंडिचर। सो पेमेंट कुछ अलग, परचेस कुछ अलग, एक्सपेंडिचर कुछ अलग, इतनी माइन्यूट लेवल पे अकाउंटिंग होती है। सो लिख लेना यहां पे, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या दिखेगा, मैं एकदम दो तीन लाइन में लाया करता हूं। दिस इज ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है। दिस इज रिसेंट पेमेंट, 2-3 लाइन का, ज्यादा से ज्यादा, मतलब कौन सा आइटम किधर जाएगा ये पता होना चाहिए। जिस दिन आपको ये समझेगा ना, पेमेंट अलग होता है, परचेस अलग होता है, कंजम्पशन अलग होता है, मैं मानूंगा आप एक्चुअली आप में इंप्रूवमेंट हो रही है। दिस इज रिसीट एंड पेमेंट, दिस इज क्लोजिंग बैलेंस शीट, या इनकम एंड एक्सपेंडिचर लेते पहले। एंड दिस इज योर क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट, हाँ ध्यान देना, ओपनिंग एसेट में स्टॉक था, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना था, ओपनिंग स्टॉक कितना था 3,000। ओपनिंग बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल थे, कितने के क्रेडिटर्स थे 2,000 लायबिलिटी में। ड्यूरिंग द ईयर आपने कितने का पेमेंट किया है 10,800, यहाँ पे डेबिट है, रिसीव पेमेंट के क्रेडिट पे रहेगा, बाय पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, कितने का पेमेंट किया आपने 10,000, डेबिट है यहाँ पे क्रेडिट आ गया 10,800, ये पेड है पेमेंट साइड पे, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये परचेसेस किधर है, इधर है। क्लोजिंग स्टॉक कहां पे आएगा, क्लोजिंग असेट में आएगा, क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक लिखो खाली 500, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग असेट में आएगा 500। क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितने 1,300, एंड 12,600 कहां पे आएगा कंजम्पशन में, टू एक्सपेंडिचर स्टॉक कंज्यूम्ड। $12,600 लिख लेना, मेक a complete formatting, small things but very 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 important thing लिखो।
लिखो। So purchase is different. Hmm. Purchase is different and payment is different, bhai. How can you write purchases on the payment side? Purchases is different and payment is different. डबल एंट्री कंप्लीट करनी आनी चाहिए ना. लिखो. लिखो जल्दी. ओके. दूसरी बात. दूसरी बात. Always remember, when they give you creditors, opening and closing creditors in the question. When they give you opening and closing creditors in the question, creditors for sports material, in that case, जो पेमेंट साइड पे रहेगा ना, that payment is to creditors. It is not purchase. वो क्या रहता है? Payment to creditors. ठीक है. Whenever they will give you opening and closing creditors, in that case the payment is to the creditors. It is not purchase, it is payment to creditors. Payment to creditors is different and purchase is different. पहले purchase करोगे फिर payment करोगे. ठीक है. ऐसे. इसलिए payment to creditors is different. Next. अब next question में देखो क्या है. Next question. Amount due to suppliers. Due to suppliers. Creditors है. Due to suppliers. Opening creditors, closing creditors. Advances to suppliers. Sometimes you pay advances to your sellers. कभी कभी हम 20% 30% एडवांस दे के रखते हैं. एक आधा सपोज हमने फर्नीचर वगैरह परचेस करना है तो हमें एडवांस देना होता है. सो समटाइम्स वी आल्सो पे एडवांस टू आवर क्रेडिटर्स. कोई क्रेडिटर्स को एडवांस में पेड किया होगा, कोई क्रेडिटर्स को बाद में पे करेंगे. सो दिस इज ओपनिंग क्रेडिटर्स हैविंग क्रेडिट बैलेंसेस. ये क्रेडिट बैलेंसेस है बिकॉज ये पेएबल है. एंड एडवांस गिवन टू क्रेडिटर्स, उतना बाद में कम पे करने का. इट इज असेट. एडवांसेस गिवन इज असेट. These are right. These are creditors actually. ये creditors के balances दिए, trade balances हैं, and these are the debit balances of creditors.
Advances given is a debit. So creditors represent all the sellers. एक ही अकाउंट बनाते हैं, इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग डिफरेंट डिफरेंट सेलर्स अकाउंट, एक ही अकाउंट में हमने वो कंबाइन मारा है, दैट इज क्रेडिटर्स. सो इनको, इनका क्रेडिट बैलेंस है ओपनिंग क्लोजिंग, इनका डेबिट बैलेंस है. आई विल प्रिपेयर सिंगल अकाउंट. एडवांस गिवन इज एन असेट, दिस इज लायबिलिटी ऑफ द एनपीओ, दिस इज असेट ऑफ द एनपीओ. एडवांस इज गिवन. स्टॉक ऑफ द स्पोर्ट्स मटेरियल, ओपनिंग एंड क्लोजिंग. During 11-12, payment made to the suppliers, what 10,000? Payment made to the subcreditors, suppliers. This is payment made is different and purchase is different. Cash purchases में जितना पेमेंट है उतना परचेस होता है. कैश परचेसेस में जितना पेमेंट करोगे उतना परचेस होता है. बट क्रेडिट परचेसेस में पेमेंट अलग और परचेसेस अलग. पेमेंट अलग, कभी कभी आपको डिस्काउंट मिल सकता है तो आप यू मे पे लेस देन व्हाट यू परचेस. समझ में आ रहा है? कभी कभी आप ज्यादा पे करोगे, कुछ एडवांस दोगे, सो पेमेंट इज डिफरेंट एंड परचेस इज डिफरेंट. ऑलवेज रिमेंबर, कैश परचेसेस में जितना पे करोगे, जितना पेमेंट साइड पे रहेगा उतना ही परचेस रहेगा. कैश परचेस का एंट्री क्या होती है? परचेसेस टू कैश. हाउएवर इन अ क्रेडिट परचेस, purchases is different and payment is different. So you should bifurcate what is the purchase, what is payment. So this is payment to suppliers, payment to creditors. This 10,800 is not purchase, it is payment to them. हमें purchase ढूंढने होंगे by preparing creditors account. There were no cash purchases. ठीक है? Case B. Let's start. This was case A. Case B. Case B. Krishna? Yeah. Case B. I need to prepare creditors account. Creditors for sports material. Debit and credit. This is increase in liability, this is decrease in liability. Consumption is equal to opening stock plus purchases there are two types of purchases, cash and credit. Then less closing stock, therefore consumption expenditure में आएगा. परचेस, पेमेंट डिफरेंट, परचेस डिफरेंट, कंजम्पशन डिफरेंट, तीन अलग अलग चीज है. क्रेडिट परचेसेस के केस में पेमेंट इज डिफरेंट, परचेस इज डिफरेंट एंड कंजम्पशन इज डिफरेंट. कैश परचेस के केस में एटलीस्ट पेमेंट इज इक्वल टू परचेसेस. ठीक है? देयर वर ओपनिंग क्रेडिटर्स. बाय ओपनिंग क्रेडिटर्स क्रेडिट बैलेंस रहेगा, उसके अपोजिट में क्लोजिंग क्रेडिटर्स. क्यों? बिकॉज नेक्स्ट ईयर वो क्रेडिट पे बराबर जाएंगे. ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग असेट, असेट मींस डेबिट बैलेंस टू ओपनिंग एडवांस. बाय क्लोजिंग एडवांस अपोजिट. बिगिनिंग में कितने एडवांस देके रखा है, एंड में कितने एडवांस है, नेक्स्ट टाइम डेबिट पे आएगा वो. एडवांसेस आर डेबिट्स, असेट्स. एडवांस गिवन इज एन असेट. यहां पे आएगा बाय परचेसेस ड्यूरिंग द ईयर, परचेसेस ऑन क्रेडिट. यहां पे हमने इस साल में उनको कितना पेमेंट किया है, क्रेडिटर्स टू कैश और बैंक. कैश और बैंक जो रिसेंट पेमेंट के क्रेडिट पे आएगा. यहाँ पे डेबिट है, उधर क्रेडिट होगा. और ये यहाँ पे क्रेडिट है, परचेसेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर का डेबिट पे आएगा. यहाँ पे क्रेडिट है, इनकम एक्सपेंडिचर का डेबिट पे आएगा. नेक्स्ट करेक्ट लिखो, जो जो बैलेंस है ठीक से लिखो.
amount due to suppliers 15,9750, opening 15,000, closing 9750, opening 15, closing 9750. ठीक है, आगे आगे एडवांसेस टू सप्लायर, असेट, एडवांस गिवन टू सप्लायर्स, उतना बाद में कम पे करना होगा, इट इज एन एडवांस गिवन इज ऑलवेज असेट. 5,000 ओपनिंग, 3250 क्लोजिंग, 3250 क्लोजिंग, ओपनिंग 5,000. आगे देन हमने उनको 10,800 का पेमेंट किया है, 10,800 का पेमेंट किया बाय टू कैश पेमेंट. पेमेंट की एंट्री आती है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश. क्या एंट्री आती है? क्रेडिटर्स टू कैश. सो यू कैन फाइंड आउट परचेसेस. डेबिट टोटल इज 50, 13 नहीं 13 नहीं 15 आएगा. वन कैरिड 10, 20, 25, 25,550. अकाउंट टैली नहीं होगा, मिसिंग फिगर परचेसेस है. 300, 15, 18, 18 प्लस 7, 25. चेक करो बराबर है क्या परचेसेस. नाउ मिसिंग फिगर चेक करो. $7,300. Yes. So goods purchased on credit 7,300. Cash purchases are 0. Opening stock क्या लिखा है? ओपनिंग स्टॉक पढ़ो. ओपनिंग स्टॉक इज 15,000, क्लोजिंग स्टॉक इज 2,500. ओपनिंग स्टॉक 15, क्लोजिंग स्टॉक इज 2,500. सो ओपनिंग स्टॉक 15,000 का था. साल भर में हमने क्रेडिट पे परचेस किया 7,300, कैश पे कुछ भी नहीं है. टोटल हमारे पास स्टॉक हो गया 22,300. उसमें से 2,500 अभी भी बाकी है, मतलब एक क्लोजिंग में बचेगा 19,000 आई थिंक 800, 19,800. चेक करो बराबर है क्या? 19,800. कौन सा आइटम कहां पे जाएगा? ओपनिंग क्रेडिटर्स ओपनिंग लायबिलिटी में जाएंगे. कहां पे जाएंगे? ओपनिंग लायबिलिटी में. एडवांस ओपनिंग एडवांस ओपनिंग असेट, डेबिट बैलेंस है ना, ओपनिंग असेट. क्लोजिंग एडवांस डेबिट बैलेंस है. क्रेडिट डेबिट इज मोर देन क्रेडिट फॉर टू दैट एक्सटेंट. ये क्लोजिंग असेट में जाएगा. क्लोजिंग क्रेडिटर्स क्लोजिंग लायबिलिटी में जाएगा. ये यहां पे गया, यहां पे दिखा है उसका. ठीक है, दिस इज यहां पे डेबिट है, मतलब रिसेंट पेमेंट पेमेंट साइड जाएगा. क्रेडिट वहां पे क्रेडिट पे जाएगा, पेमेंट साइड. ये ओपनिंग स्टॉक कहां पे जाएगा? ओपनिंग असेट. ये परचेसेस कहां से आए? यहां से आए बराबर. 2,500 क्लोजिंग स्टॉक कहां पे जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक कहां पे जाएगा? क्लोजिंग असेट. कंजम्पशन कहां पे जाएगा? कंजम्पशन जाएगा एक्सपेंडिचर साइड. लिखो मैंने सब कौन सा आइटम कहां पे जाएगा समझा दिया. देन मेक इट फास्ट. मेक इट फास्ट.
समझा क्या? देखो क्रेडिटर्स अकाउंट आपने 11th-12th में किया है, बट आपने कभी वैसे नहीं सोचा। अगर आपके पास मैंने बोला कि इतना पेएबल था, इतना बकाई बाकी है, इतना पेड किया है, तो आप परचेज नहीं ढूंढ सकते? इतना एडवांस है बिगिनिंग में, इतना क्लोजिंग है। एडवांस मींस डेबिट बैलेंस, एडवांस गिवन टू क्रेडिटर्स, तो डेबिट बैलेंस है। पेएबल टू क्रेडिटर्स से क्रेडिट बैलेंस, ओपनिंग क्लोजिंग लिखो। मैं वीडियो ऐड करता हूं तो आप पूरा लिख सकते हो। दिस इज वेरी डीप कंसेप्ट, मतलब ये बहुत ही हाई लेवल का हो गया फिर वैसे देखा जाए तो। बढ़िया आना चाहिए मेरे हिसाब से। कुछ एक बार समझ में आ गया तो इसमें से ना समझ में आया ऐसी कोई बात नहीं है। ओपनिंग बैलेंसेस ओपनिंग बैलेंस शीट में रहेंगे, क्लोजिंग बैलेंसेस क्लोजिंग बैलेंस शीट में रहेंगे। पेएबल रहेगा तो लायबिलिटी में रहेगा, एडवांस गिवन रहेगा तो असेट में रहेगा, एज सिंपल एज दैट। ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग असेट में रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग असेट में रहेगा। जल्दी करो। शायद समझ कोई चीजें हम सोचते नहीं है, ऐसे नहीं कोई डिफिकल्ट होता है, बट हम कभी उस पर इतना सोचते नहीं। आगे हो गया लिख के? जल्दी करो, मतलब आगे चलने को। और ये लिख लेना जो मैंने लिखा है ना, ओपनिंग असेट ओपनिंग लायबिलिटी, आपको पता होना चाहिए। द लास्ट नाउ, तो लास्ट में चलते हैं आप। हो गया लिख के? ध्यान देना आप। लास्ट, ठीक है। सो वेन एवर दे गिव यू ओपनिंग एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर इट मीन्स राइट, whenever they give you opening and closing creditors, it means the payment जो होता है ना पेमेंट साइड पे, that is not purchases but that is towards creditors। तो हिंट होनी चाहिए, वो क्रेडिटर के लिए पेमेंट है, वो परचेस नहीं है। आगे सी, creditors for sports material, stock of the sports material during the year 11-12, payment made to these creditors, this is payment to creditors, and cash purchase amounted 20% of total purchase। कैश परचेस इज 20% ऑफ टोटल परचेस, मतलब क्रेडिट परचेस 80% रहेंगे। क्रेडिटर्स अकाउंट करोगे, योर ओपनिंग क्रेडिटर्स, योर क्लोजिंग क्रेडिटर्स, योर पेमेंट टू क्रेडिटर्स। चार चीजें होती क्रेडिटर्स में, ओपनिंग, क्लोजिंग, परचेसेस एंड पेमेंट। ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस परचेसेस माइनस पेमेंट इज इक्वल टू क्लोजिंग क्रेडिटर्स। व्हाट इज क्लोजिंग क्रेडिटर्स? ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्रेडिट परचेसेस
इतने के क्रेडिटर बन जाएंगे माइनस पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, टी फॉर्म को आप ऐसे लिख सकते हो, इज इक्वल टू क्लोजिंग क्रेडिटर्स। ओपनिंग क्रेडिटर्स आर 2300, क्रेडिट परचेसेस एक्स ढूंढना है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स इज 24,500, 24,400 is a closing creditors which is 5,900. Therefore, x is equal to, right, 5,900 plus 24,400 minus 2,300. So if we find out x, it will be 5,900 plus 24,400 minus 2,300. It is 28,000. It will be 28,000. It will be 28,000. So your purchases are 28. मतलब पहले हमें 2,300 पे करना था प्रीवियस ईयर के लिए, प्लस इस ईयर में हमने 28,000 के परचेस किए, टोटल हमें उनको पे करना है, राइट, 30,300। उसमें से हमने उनको 24,000 का कुछ तो पेमेंट कर दिया, तो अभी भी कितना पेमेंट करना बाकी है, 5,900। सो 28,000 का क्रेडिट परचेस है। कैश परचेस इज 20% ऑफ द टोटल परचेस। सो टोटल परचेस 100 होगा, तो 20 रुपीज कैश परचेस होगा, 80 रुपीज क्रेडिट परचेस होगा, विच इज 28,000। तो आपको टोटल परचेस पता चलेगा। कितना सिंपल है, चलो करें स्टार्ट। केसी केसी creditors for sports material. Increase, decrease, debit and credit. This is consumption. Opening stock plus purchases, cash purchases and credit purchase. Cash purchase to cash interest रहती है, क्रेडिट परचेस की परचेस टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स से पता चलेगा क्रेडिट परचेस। ये सब टोटल आ जाएगी, लेस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, कंजम्पशन मिलेगा। अब देखते हैं क्या क्या लिखा है उन्होंने। ओपनिंग क्रेडिटर्स 2,300, क्लोजिंग क्रेडिटर्स 5,900, 2,300 and 5,900. Creditors are credit by opening creditors to closing creditors. ये नेक्स्ट टाइम क्रेडिट पे आ जाएगा, राइट, आगे। Then during the year you have made payment of 24,400, 24,400 का पेमेंट किया, क्रेडिटर्स टू कैश, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। ये पेमेंट साइड पे लिखेगा, बाय पेमेंट टू क्रेडिटर्स 24,400, यहां से परचेस पता चलेंगे। दीज आर क्रेडिट परचेस, क्रेडिटर से क्रेडिट परचेस करोगे ना। दिस इज 30,300, 30,300 माइनस 2,300 इज 28,000। वही तो आ गया आपका, क्या फॉर्मूला आ गया आपका, फॉर्मूला क्या आ गया, राइट, देखो ना, वही फॉर्मूला आ गया। क्या किया था आपने, 5,900 प्लस 24,400 माइनस 2,300, वही आ गया आगे। सो योर क्रेडिट परचेसेस आर 28,000. They have said total purchases
में से 20% is rupees 100, suppose cash purchases are 20%, that is rupees 20. So credit purchases are rupees 80. Obviously अगर 100 रुपीज के टोटल परचेस है उसमें से 20% कैश परचेस है, क्रेडिट परचेसेस 28. देयर आर टू टाइप्स ऑफ परचेस, कैश एंड क्रेडिट. पहले दो क्वेश्चन में कैश परचेस नहीं थे, इसमें कैश परचेस भी है. सो कैश परचेसेस, क्रेडिट परचेसेस आर 80. When 20 rupees is cash purchase, 80 rupees is credit purchase. Credit purchase is 28,000. What is cash purchase? Suppose A. Cross multiplication. Therefore, A multiplied by 80 is equal to 20 multiplied by 28,000. Therefore, A is equal to 28,000 multiplied by 20 divided by 80. It is 1 by 4, 7,000. Therefore, your total purchase, cash plus credit, cash purchases are 7,000, credit purchases are 28,000, total purchase are 35,000. 35,000 total purchase है, उसका 20%. Total purchases are 35,000, उसका 20% is 7,000, उसका 80% is 28. हो गया टैली? Yes. So cash purchases are 7,000, credit purchases are 28,000. ठीक है, टोटल परचेस 35 आ गया. आपका ओपनिंग स्टॉक कितना था? ओपनिंग स्टॉक कितना था? 7,500. क्लोजिंग स्टॉक इज 10,000. ये 7,500, closing stock is 10,000. So total purchases are 500, 14, 22 to carry. 42,500 is the total goods available for consumption. उसमें से 10,000 बाकी है. 32,500 is consumption. Is consumption. बच्चों ने 25,500 लिया है. They still don't understand. There can be cash purchases. There can be cash purchase. There are two types of purchases. एक होते हैं कैश और दूसरे होते क्रेडिट. पहले दो क्वेश्चन में there were no cash purchases. इस क्वेश्चन में there are cash purchases as well. अब कौन सा आइटम कहां पे जाएगा? ओपनिंग क्रेडिटर्स ओपनिंग लायबिलिटी में, क्लोजिंग क्रेडिटर्स क्लोजिंग लायबिलिटी में. ये पेमेंट है, पेमेंट साइड ऑफ रिसीविंग पेमेंट. ये परचेसेस तो यहां पे आ गया. स्टॉक ओपनिंग असेट में, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग असेट में, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर साइड, कंजम्पशन इज एक्सपेंडिचर, एंड देयर आर कैश परचेसेस एज वेल. उसकी एंट्री डायरेक्टली, उसकी एंट्री होती परचेस टू कैश. दिस इज पेमेंट साइड. पेमेंट साइड पे दो चीजें जाएगी, एक कैश परचेसेस ऑफ 7,000 एंड पेमेंट टू क्रेडिटर्स 24,400. पेमेंट दो तरीके का पेमेंट होगा, एक कैश परचेस के लिए पेमेंट होगा एंड एक क्रेडिटर्स का पेमेंट होगा. लिखा जाएगा इसे पेमेंट साइड पे, ध्यान देना. दो चीजें लिखी जाएगी पेमेंट साइड पे. ये ले, यही कॉपी पेस्ट करता हूं, एक मिनट. देखो एक एक ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने? 2,300. 2,300. ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक
7,500। ये दो चीजें ओपनिंग बैलेंस शीट में गई। एडवांस होता तो असेट पे लिखता, ओपनिंग एडवांस होता तो असेट पे लिखता। देन उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या आएगा? क्लोजिंग क्रेडिटर्स विच आर 5,900 एंड क्लोजिंग स्टॉक आएगा विच इज 10,000। अगर क्लोजिंग एडवांस होता तो असेट में आता, एडवांस मींस असेट। ठीक है, अब देखो उसके बाद पेमेंट, पूरे साल में हमने कितने का पेमेंट किया है? दो तरीके का पेमेंट किया। एक पेमेंट टू क्रेडिटर्स विच इज, यहाँ पे देखो टू कैश लिखा है तो कैश में बाय क्रेडिटर्स आएगा 24,500, 24,400 का पेमेंट टू क्रेडिटर्स है। दिस इज नॉट परचेस, दिस इज पेमेंट टू क्रेडिटर्स, कैश गई है। एंड दूसरा इज बाय कैश परचेसेस, परचेसेस टू कैश which is 7,000 cash purchases. This is straight away cash purchases, this is straight away payment to creditors. आप बच्चे क्या बोलते हैं? 24,400 क्रेडिट परचेस है। उनको गधे होते हैं, उनको यही नहीं समझ में आता कि ये क्रेडिटर्स का पेमेंट अलग होता है और परचेस अलग होता है। और ये जो परचेस है वो कैश परचेस है, उसकी एंट्री थी परचेस टू कैश, एक्चुअल परचेस है। और ये पेमेंट टू क्रेडिटर्स है। फिर हमें पेमेंट टू क्रेडिटर्स मतलब क्रेडिटर्स अकाउंट में जाएगा जहां से मुझे परचेस पता चलेगा। ठीक है, देन एक्सपेंडिचर में आएगा, कितना आएगा एक्सपेंडिचर में? 32,500। इतना डिफिकल्ट महाराष्ट्र बोर्ड में नहीं पूछेंगे, बट अगर आपको कंसेप्ट समझ में आई है तो पूरी समझ लो ना। फिर लिखो, पहले ये लिखो, हम्म, चलो। इसके बाद ये लिख लेना, ये लिख लिया। अब ये प्रेजेंटेशन, आई डोंट नो तुम लोगों ने कितने ने बराबर किया था। कितने लोगों का बराबर आया था रे सच्ची में? एनीवन?
हाफ करेक्ट है। देखो अब ऐसे नहीं कि कुछ अलग किया है, बट हम कभी वैसे सोचते नहीं। ठीक है, जब आप परचेस बोलते हो तो आपको क्लिक होना चाहिए कि परचेस मतलब क्या। देयर आर टू टाइप्स ऑफ परचेसेस, एक हो सकता है कैश परचेस, एक हो सकता है क्रेडिट परचेस। क्रेडिट परचेस मतलब क्या, राइट? क्रेडिट परचेस मतलब हम क्रेडिटर्स से जो परचेस करते हैं वो, मतलब क्रेडिटर्स का पेमेंट मतलब ही क्रेडिट परचेस क्या नहीं, पेमेंट कुछ कम ज्यादा भी हो सकता है। परचेस की एंट्री अलग और उनके पेमेंट की एंट्री अलग होती है। तो एक ट्राई टू अंडरस्टैंड, इतना माइन्यूट लेवल पे अगर आप सोचना स्टार्ट करोगे ना तो यू विल अंडरस्टैंड मेनी थिंग्स जो नॉर्मली नहीं समझ में आती लोगों को। एंड दैट विल बी लाइक, आई विल से लाइक ब्लेसिंग टू यू, अगर आप इतना छोटी छोटी चीजों पे खुद को इन्वॉल्व करते हो। ठीक है, सो आगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया था मैंने लास्ट ईयर। शायद से नहीं होगा, ठीक है कोई गल नहीं, चलो। ठीक है, सो दिस इज द थिंग दैट एवरीवन मस्ट अंडरस्टैंड। आगे, सो व्हाट इज द ट्रीटमेंट, ध्यान देना। whenever you, in case of NPO, if nothing is mentioned, entrance fees को हम income में लेके जाएंगे। if nothing is mentioned, if they ask us to capitalize, हम capitalize करेंगे। हमें वो fully capitalize करने को बोल सकते हैं या partially। like we have received 1 lakh entrance fees and they said 60% capitalize करो, तो 1 लाख में से 60,000 हम कैपिटल में ऐड करेंगे, 40,000 हम इनकम में ऐड करेंगे। बोलते हैं 70% कैपिटलाइज करो, तो 70,000 कैपिटल में ऐड करेंगे, 30,000 इनकम में रखेंगे। बोलते 30% कैपिटलाइज करो, तो 30,000 कैपिटल में ऐड करेंगे, 70,000 इनकम में रखेंगे। इंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, इफ नथिंग इज गिवन वी विल ट्रीट इज ए इनकम अनलेस एंड अंटिल दे आस्क यू टू कैपिटलाइज। जब कुछ नहीं लिखा तो इंट्रेंस फीस इनकम, एडमिशन फीस इज इनकम, डोनेशन, if nothing is mentioned about the nature of the donation, just donation लिखा है, there is no specific information, the donations are not for specific purpose like donation for building, donation for prize fund, donation for ground, library, computer lab, ऐसे कोई specific donation है, just receipt side पे donation लिखा है। In that case that donation is to taken in income because we can use the donation for any purpose, इसलिए हम उसको income में लेंगे। But if they ask you to capitalize, right, if they ask you to capitalize और देयर इज अ स्पेसिफिक डोनेशन, कैपिटलाइज करना तो कैपिटल में ऐड करेंगे, अगर स्पेसिफिक डोनेशन है तो लाइबिलिटी में अलग हेड के अंदर लिख देंगे। ठीक है, देन लीगेसीज, लीगेसीज आर एज पर द विल ऑफ द डिसीज पर्सन, राइट? कोई मरने के बाद उसके विल के हिसाब से, वसीयत के हिसाब से ही may donate some of his property, some of his assets to the NPO. That legacy is a capital in the nature that is to be added in the capital fund. Legacies are, if nothing is given, always and always add in capital fund. Then
उसके बाद उसके बाद या उसके बाद आता है लाइफ मेंबरशिप फीस. लाइफ मेंबरशिप फीस इन द अब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इज टू बी एडेड इन द कैपिटल फंड. किसमें ऐड करेंगे? कैपिटल फंड में. मैं अगर कुछ नहीं तो मैं समझा रहा हूं. एंट्रेंस फीस कुछ नहीं तो इनकम, एडमिशन फीस कुछ नहीं तो इनकम, जनरल डोनेशंस income, specific donations obviously liability, then legacies capital, life membership fees capital, then endowment funds are those funds, endowment funds are those funds, right, the use of which is restricted. Actually endowment fund के केस में क्या होता है? You are not allowed to use the principal. The donor will give principal amount donation, principal amount to the NPO which is required to be invested. NPO को वो क्या करना होगा? इन्वेस्ट करना होगा. So donor will give donation to the NPO which NPO is required to invest, and the interest on that investment is to be used for the purpose of, right, purpose for which donation is given. So endowment fund में होता क्या है? You are not allowed to use principal, but you are allowed to use interest on that principal, interest on the investment. ऐसे फंड्स को इंडोमेंट फंड बोला जाता है. क्या बोला मैंने? इंडोमेंट फंड्स आर दोज फंड्स वेयर द एनपीओ इज नॉट अलाउड टू यूज प्रिंसिपल अमाउंट, बट दे आर अलाउड टू यूज इंटरेस्ट अर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट्स. वो जो पैसा इन्वेस्ट करोगे उसका इंटरेस्ट. ठीक है, इसलिए दैट फंड विल रिमेन एज इट इज, प्रिंसिपल अमाउंट विल रिमेन एज इट इज. वो होते हैं इंडोमेंट फंड्स. लाइक प्राइज फंड इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंडोमेंट फंड. उसके बाद whenever there is a sale, whenever there, example, take an example लिख लेना. सिंपल एग्जांपल, बहुत सिंपल. रिसेंट पेमेंट अकाउंट एक लाइन का. ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है रिसीट साइड पे, डेबिट साइड इज रिसीट साइड, राइट. यहाँ पे लिखा गया है टू सेल ऑफ फर्नीचर. यू हैव सोल्ड द फर्नीचर and you have received the money. Sale of furniture, book value 10,000. You sold at 8,000. You have sold furniture for 8,000. It means your 10,000 के बुक वैल्यू का फर्नीचर. ठीक है. हाँ, इंडोमेंट फंड में प्रिंसिपल अमाउंट यूज नहीं होगा. हाँ, अगर आपको ग्रोथ टाइप है, ग्रोथ टाइप, लाइक जैसे मैंने एग्जांपल दिया था इंडोमेंट फंड विथ ग्रोथ एन्युटी, उसमें लैटर ईयर्स में बहुत बाद प्रिंसिपल भी यूज होगा. ठीक है, वो मोर प्रैक्टिकल होता है. आगे सेल ऑफ फर्नीचर. You have sold 10,000 का फर्नीचर at 8,000 at a loss of 2,000. 10,000 का फर्नीचर 8,000 में सेल हुआ है. So there is a loss. तो इसका प्रेजेंटेशन कैसे रहेगा? This is your income and expenditure. And यहाँ पे एक और लेता हूं मैं, 2 सेल ऑफ मशीनरी at rupees 15,000. Book value is 12,000. How will you show this? बहुत सिंपल है. फर्नीचर पे 2,000 का लॉस है, मशीनरी पे 3,000 का प्रॉफिट है. हाउ विल यू शो इट? इनकम एंड एक्सपेंडिचर देखो. कि एक दो लाइन का काम हो जाता है. दिस इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड दिस इज योर बैलेंस शीट. एसेट देखो, होगा क्या ध्यान देना. देयर इज अ लॉस ऑफ
2000 ऑन फर्नीचर, तो एक्सपेंडिचर साइड पे आएगा लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर 2000 का लॉस। इनकम एक्सपेंडिचर में सेल वैल्यू नहीं आती है उस, राइट, उसमें प्रॉफिट या लॉस आएगा। 2000 का लॉस है, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। और असेट में फर्नीचर जो भी रहेगा, ओपनिंग फर्नीचर, आई डोंट नो, उसमें से बुक वैल्यू माइनस होगी, सोल्ड 10,000 माइनस होगा, एंड रिमेनिंग वैल्यू पे यू विल प्रोवाइड द डेप्रिसिएशन। सो ऑलवेज रिमेंबर एंट्री क्या होती है, व्हेन यू सोल्ड फर्नीचर ऑफ 10,000 at 8,000, bank account debit 8,000, bank account debit 8,000, loss account debit 2,000, to furniture account credit 10,000। फर्नीचर को क्रेडिट कर रहे हो 10,000, कम कर रहे हो 10,000, सो असेट से माइनस होगी बुक वैल्यू, एंड जो प्रॉफिट लॉस है वो कहां पे आएगा, एक्सपेंडिचर में आएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा। यू सोल्ड 12,000 की मशीनरी एट 15,000, प्रॉफिट है, प्रॉफिट्स आर क्रेडिट by profit on sale of machinery, sale of machinery, which is 3,000। एंड असेट में देखिएगा मशीनरी, मशीनरी कि जो भी वैल्यू होगी आई डोंट नो, लेस सोल्ड, कितने की सेल हो गई, 12,000 की सेल, बुक वैल्यू माइनस करो असेट से, बिकॉज एंट्री हुई होगी बैंक अकाउंट डेबिट 15,000 टू प्रॉफिट 3,000, प्रॉफिट को क्रेडिट हुआ है, टू मशीनरी 12,000, एंड जो बचेगा उस पर डेप्रिसिएशन दोगे। सो असेट से माइनस होगी बुक वैल्यू, असेट से माइनस होगी हमेशा और हमेशा बुक वैल्यू, एसेट से क्या माइनस होगी, बुक वैल्यू हमेशा, ठीक है। सो बच्चों को लगता है पेमेंट माइनस करना है, नो, लिखो, करो कंप्लीट, एंड देन राइट वी विल टेक ब्रेक फॉर द डे। आपका दोपहर में मैथ्स होगा, राइट, लिख लेना, या जल्दी करो, ठीक है। No, no test today, no test. I will be taking a lecture of the CA Foundation in the afternoon for 45 minutes. ठीक है, उसके लिंक मैं शेयर कर दूंगा। कल क्या है, आर वी हैविंग क्लास टुमारो, नहीं, अकाउंट्स मॉर्निंग में नहीं देगा, आफ्टरनून में देगा, ठीक है। थैंक यू।